Hello students, how are you? And today I will describe you how to solve your question paper. It is the time for your examination. It is running on, and hopefully I think that you are doing prepare well as far as concern your examination in different type of questions paper. But today I will describe you how to write your answer. That is the major problem us whenever we prepare all these things whatever we have and we complete our blueprint, we have completed our all type of answers and questions and different kind of sections of paper as far as concerned English question paper. But whenever we go to the examination hall, we don't collect our confidence how to write an answer. That is the major problem for the students here. So guys, today I will describe you without any hesitation and without any shaking hands, you will be able to write your answer in your copy. First of all, you should think that your question paper is your personality. Whatever you have prepared in all these things, it will come out through your answer. So first of all, whatever we have prepared, but our duty is that we have to solve the questions very confidently and without wasting time in your examination hall, and try to utilize all time whatever you have allotted at that time here. So first of all, we have some question paper. I will describe you this kind of question paper you will find in your examination hall, and after getting this kind of question paper, you should read it out very calmly, very patiently. You should read it out, the whole question paper whatever we have, and after reading the question paper, you will try to solve your answer one by one. And it is not necessary to take the questions serially and take the questions orderly. It is your own convenient whatever you want to solve. If you are convenient to solve your question number 2 or 3 or 7, so put your right question number and give their answer patiently, and be careful about giving the right number of questions or right number of answer. So it is our duty to prepare it all these questions very neatly and clearly. स्टूडेंट्स, आप ये देखेंगे कि जिस तरह की आपका जो अपीयरेंस होता है किसी व्यक्ति के सामने, तो वो है आपकी शक्ल सूरत देखेगा, वो आपका ड्रेसिंग सेंस देखेगा, और आप किस तरह से रख रखाव है, आपकी बातचीत देखेगा, आपकी ज़बान देखेगा। इस तरह से वो सारी चीज़ें देखने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचता है कि आप हैं क्या। ठीक उसी प्रकार एक स्टूडेंट के लिए जो कुछ भी है सब कुछ उसकी आंसर शीट है। इट इज़ योर फ्यूचर, it is your hard work, it is your all these things you have spent previously, जो कुछ भी आपने वक्त गुजारा है वो सारा का सारा आपके क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपकी आंसर शीट के द्वारा जाएगी। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि हाउ टू प्रेजेंट योर क्वेश्चन पेपर। Please pay attention the students who are studying in 11th and 12th classes, because I have a question paper, will you find it in your examination, one of them। इनमें से कोई एक क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा। अब आपको करना क्या है, whenever you are going to, आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में बिफोर फ्रेंड, you should reach your examination hall before 20 or 30 minutes। 20 या 25 मिनट पहले आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाएं, ताकि आपके अंदर कोई रशिंग ना हो, कोई हड़बड़ाहट ना हो, और किसी तरह की कोई आपको जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में जो आपकी सीट है, सीटिंग प्लान के हिसाब से आप एकदम सही जगह जाकर बहुत ही कामली यानी शांतिपूर्वक और बहुत ही ठंडे रूप में आप वहां जाकर बैठ जाएं, अपने आप को पूरी तरह से समेट लें, और जो स्टडी आपने किया है और जो
हमें एक डर होता है, एक फियर होता है, तो वो फियर हमारे जहन से निकल जाना चाहिए बिफोर अपीयरिंग इन योर एग्जामिनेशन हॉल. एंड आफ्टर गेटिंग सीट यू विल sit properly and think positively, and after getting question paper read it out thoroughly, and one by one all these questions you should read out first. And if you are not knowing any questions answer here, so don't feel any panic, don't feel any fear, and come here to write your answer one by one, whatever you are able to solve your answer. तो जब हम से कुछ क्वेश्चन जो बनेंगे वो सीरियली हमको करना है विदाउट एनी फियर. जो क्वेश्चन हमसे नहीं बनने वाला है उसका हम क्वेश्चन नंबर बाद में डालकर उसको प्रिपेयर करेंगे. तो ये हुआ. और बिफोर गोइंग टू योर एग्जामिनेशन कलेक्ट ऑल दी योर पेन्स, ब्लू ink with black ink and एक लॉन्ग स्केल, ये आपके साथ होना चाहिए. और वहाँ जाने के बाद आपको न्यूज़पेपर ये पूरा आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है. अगर आप 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट हैं MP बोर्ड के, तो आप पाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में एक पैसेज आएगा और इस पैसेज के आपको 10 क्वेश्चंस देंगे. जैसे ये मेरे हाथ में एक क्वेश्चन पेपर है, आप इसमें देख पाएंगे कि ये क्वेश्चन पेपर है मेरे पास और मैंने इसको देखा कि इसमें एक पैसेज दिया हुआ है जो अनसीन पैसेज है. अनसीन मतलब बगैर देखा हुआ, जो पहले आपने कभी नहीं देखा था. फर्स्ट टाइम यू आर वॉचिंग एंड यू आर रीडिंग हियर. एंड आफ्टर रीडिंग दैट मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं आंसर के रूप में. यानी एक क्वेश्चन है और 4 उसके संभावित आंसर हैं. तो गाइज इट इज़ वेरी इजी फॉर यू, डोंट बी पैनिक. बिल्कुल भी आप इसमें दहशत में ना आए. आप इसको रीडिंग करेंगे जब आपको पैसेज को, तो आपका आंसर भी इस क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है. वन ऑफ देम एप्रोप्रिएट आंसर यू हैव टू राइट हियर. तो एप्रोप्रिएट मीन्स सुटेबल, उचित जो आंसर है उसको आपको यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे. उनमें से आपको आंसर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 1 का जो रोमन लेटर में लिखा रहता है 1 2 3 उसका ABCD ये आंसर लिखना है. अगर आपको पर्टिकुलर वो वर्ड लिख दिया है तो भी ठीक है और नहीं लिखा है तो भी ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 1 और उसके बाद में जो भी ऑप्शन आपका ABCD आया है वो आपको नोट कर देना है. तो ये 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चंस है विथ ऑप्शन, यानी ऑब्जेक्टिव यानी विकल्प के साथ यहाँ पर आपको आंसर दिया गया है. तो विकल्प में जो आंसर है वही आंसर आपको क्वेश्चन पेपर के उस पैसेज में लिखा हुआ होगा. अगर आपने थॉरोली इसको रीडिंग की है, केयरफुली रीडिंग की है, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड द आंसर हियर. तो आपको निश्चित रूप से वो आंसर मिलने वाला है. तो 10 मार्क्स स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए. अब इसके बाद में आइए क्वेश्चन नंबर 2 में. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आने वाला है? क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा सेक्शन बी है, राइटिंग सेक्शन का. तो यहाँ पर 4 सेक्शन में हमारा क्वेश्चन पेपर डिवाइड रहने वाला है. फर्स्ट को सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी. सेक्शन ए में हमारा अनसीन पैसेज आया हुआ है, रीडिंग सेक्शन कहलाता है, और सेक्शन बी हमारा राइटिंग सेक्शन कहलाता है. यहाँ हमें राइटिंग करनी है. तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 में आया है हमारा. इसमें आपको ये दिया हुआ है एक नोटिस इन्फॉर्मेटिव अबाउट द स्टूडेंट हु ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन योर स्कूल. नोटिस राइटिंग है या फिर आपको यहाँ पर एक पोस्टर बनाना है. तो ऑप्शन दिया होगा. अगर आपने नोटिस बनाने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से की है तो फिर आपको पोस्टर में वहाँ छूट इसलिए मिल जाएगी क्योंकि वहाँ पर और करके दिया है, यानी ऑप्शन है. और यानी अथवा, या तो आप नोटिस करें या आप पोस्टर बनाएं. तो जिन स्टूडेंट्स की अगर ड्राइंग अच्छी है तो वो पोस्टर की तरफ चले जाएं. और पोस्टर बनाने में ज़्यादातर जो आता है वो हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, रूटीन प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके बारे में पूछा जाता है. जैसे सेव ट्रीज़ हो गया, अवॉइड ड्रग्स हो गया, डोंट टच
डोंट टच एनी अनक्लेम्ड आर्टिकल, यानी कोई फेंकी हुई चीज़ें हैं तो उनको आप ना छुएं। इस तरह के जो है, या कोई ड्राइव आता है, ड्राइव यानी कोई अभियान चल रहा है, उसके बारे में पोस्टर बनाने के लिए आता है। तो नोटिस आप बनाएं या एक पोस्टर बनाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, और मैं आपको ये बताने वाला हूं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 इसकी अगर आपकी प्रिपरेशन है तो आपको पासिंग मार्क्स तो इन्हीं क्वेश्चंस में मिल जाने वाले हैं। बाकी आपका प्रिपरेशन होगा 1 बाय 1, जहां आपने एक्सट्रैक्ट किया होगा, जहां आपने क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर किए होंगे, और वे क्वेश्चन आंसर अगर आपने लेसन की रीडिंग की है प्लस आपको पता है राइटर का नाम और लेसन का नाम, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हियर। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, 1 बाय 1 आपको इन क्वेश्चंस को देखना है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 की। ऑप्शन यहाँ पर 2 आ गए, या तो आपको नोटिस बनाना है या फिर आपको पोस्टर बनाना है। इन दोनों हालतों में क्या करना है आप देखिएगा। अगर हमें नोटिस बनाना है तो फर्स्ट ऑफ मैं नोटिस की बात कर रहा हूँ, ये 3 तरफ से आप इसको स्केल के ज़रिए ये एक बाउंड्री इसकी बना लीजिए और फ्रेश पेज में करना है। जब कभी भी आप पोस्टर बनाएं या नोटिस बनाएं, फ्रेश पेज आप ले लें। अगर बीच में मिडिल पेज में करते चले आए हैं तो आप एक यहाँ पर एक स्लैंट लाइन आप खींचकर, तिरछी लाइन खींचकर आप यहाँ लिख देंगे PTO। PTO का अर्थ होता है प्लीज टर्न ओवर, और फ्रेश पेज में आप यहाँ पर लिखेंगे। तो मैंने जैसे कि ये 3 तरफ की लाइन यहाँ खींची है, यहाँ नोटिस लिखना है। नोटिस राइटिंग इज़ वेरी इजी। इसका जो मैटर है, टॉपिक है, वो सारा आपको क्वेश्चन पेपर में मिलना है। गाइज आप ये ध्यान रखें कि 50% प्रिपरेशन हमारा क्वेश्चन पेपर कर देता है। अगर हम वाकई में अपने क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छी तरह से हमने रीडिंग किया है तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। आप इसको कर लेंगे। अब नोटिस में देखिए, मैं आपको केवल उसका एक प्रोफॉर्मा बताऊंगा कि नोटिस में आता क्या क्या है और उसको करते कैसे हैं। यानी ये उसका एक मैंने आपको एक सैंपल बनाया हुआ है कि आप 3 तरफ की लाइन खींच लीजिए। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ें इसमें आने वाली हैं, आप काउंट करिएगा। पहला आने वाला है यहाँ पर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या नेम ऑफ द ऑफिस। ये सरल है, इजी है, ऑफिस याद रखना। तो नेम ऑफ द ऑफिस आएगा पहले नंबर पे, यानी ऑफिस का नाम लिखना है। तो जाहिर है कि अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो आप स्कूल का नाम लिख देंगे। अगर क्वेश्चन पेपर में किसी स्कूल का नाम स्पेसिफिक दिया हुआ है तो उस स्कूल का नाम लिखना है। अदरवाइज आप अपने ओन स्कूल्स नेम भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑफिस का नाम आना चाहिए। इसके बाद ये नंबर 1 मैंने इसको दिया। नंबर 2 में क्या आने वाला है, कैपिटल लेटर में आपको यहाँ नोटिस लिखना है सेंटर में, बिल्कुल मिडिल ऑफ योर बॉक्स। आपने जो बॉक्स बनाया है उसके बीचों बीच आप बोल्ड लेटर में और कैपिटल लेटर में आपको नोटिस लिखना है। तो गाइज यहाँ पर 2 पॉइंट मैं बता चुका हूँ। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको यहाँ डेट लिखना है। जिस डेट को आप पेपर दे रहे हैं, अपना क्वेश्चन पेपर, उस डेट को यहाँ पर लिखिएगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 पॉइंट में जो है हमारा यहाँ टॉपिक आएगा, यानी किस विषय के ऊपर आप नोटिस लिख रहे हैं। तो यहाँ पर 4th पॉइंट में यहाँ पर आ जाएगा हमारा टॉपिक। अब यहाँ पर टॉपिक क्या हो सकता है, या तो आपको किसी स्कूल में कोई फाउंड एंड लॉस्ट हुआ है, यानी कोई चीज़ मिली है या गुमी है उसके बारे में, या कोई अभियान चलने वाला है, कोई ड्राइव चलने वाला है, जैसे ट्री प्लांटेशन, वैक्सीनेशन, या कोई टूर्नामेंट या एनुअल एग्जामिनेशन, कोई भी इवेंट हो वो हमारा यहाँ टॉपिक बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा यहाँ मैंने 4 पॉइंट्स यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है। इसके बाद ये देखिएगा मार्क्स पूरे मिलने वाले हैं। ये फॉर्मेट पे डिपेंड करता है। देखिए आंसर डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं फॉर्मेट पर। आप 1 बाय 1 फॉर्मेट को बनाते चले जाएं, आपको एग्जामिनर नंबर देता चला जाएगा। नंबर इसमें कटेंगे नहीं, रिड्यूस कभी नहीं होंगे।
4 पॉइंट। इसके बाद यहाँ पर आता है ऑल स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड। ये सेंटेंस, ये लाइन याद कर लीजिए। ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड, यानी सभी छात्रों को यहाँ पर सूचना दी जाती है। ये पॉइंट को रट लेंगे यहाँ पर, ताकि कोई भी सेंटेंस आए तो हमारा जो स्टार्टिंग ट्रबल ना हो और हम उसको नोटिस को लिख लें। अब इसके बाद की जो चीज़ आने वाली है वो आपको क्वेश्चन पेपर में मिलने वाला है। जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम है तो उसका सेंटेंस आप क्वेश्चन पेपर से ले लें, टूर्नामेंट है तो टूर्नामेंट में ले लें। तो ये हमारा हो गया 5 पॉइंट। अब 6 पॉइंट में क्या होगा? वेन्यू होगा। वेन्यू, जैसे 6 पॉइंट में वेन्यू मतलब होता है स्थान। भाई वो अगर वैक्सीनेशन है तो कहाँ है? स्कूल कैंपस में है, किसी हॉल में है या ऑडिटोरियम में है, उस जगह का नाम लिख देंगे। 7 पॉइंट में आप ये लिखेंगे कि वो आपका, यहाँ तो वेन्यू हो गया और यहाँ हम टाइम और डेट भी लिख सकते हैं। टाइम और डेट लिख सकते हैं, क्या लिखना ही चाहिए। इसके बाद ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर में हमारा यहाँ पे आ जाएगा अगर उस प्रोग्राम के लिए कोई चीफ गेस्ट है या किसी को आपने इनवाइट किया है या कोई प्रेसिडेंट बुलाया है तो यहाँ पर नेम ऑफ चीफ गेस्ट आपका आ जाएगा, चीफ गेस्ट। और अगर ये नहीं है, प्लांटेशन नहीं है, तो जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है आपका नोटिस लिखने का, वो आपको क्वेश्चन पेपर में मिलने वाला है, वहाँ लिख लेंगे। और लास्ट में जो है हमारा ये लेफ्ट साइड में, हमारे आंसर कॉपी के लेफ्ट साइड में हमें यहाँ लिखना है कि ये नोटिस किसकी तरफ से लिखा गया है। किसकी तरफ से लिखा गया है ये कौन बताएगा आपको? ये क्वेश्चन पेपर बताएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, ये सेक्रेटरी ने लिखा है या फिर स्कूल बॉय ने लिखा है या स्कूल कैप्टन ने लिखा है या किसी कैप्टन ने लिखा है। जो भी लिखेगा वो आपको यहाँ पर नाम आ जाएगा उसका और वो उसके यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे। लेकिन ये आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर में ये मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है हमारे सेक्शन बी में, वो देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आने वाला है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका नोट मेकिंग है और क्वेश्चन ये 3 जो है ये आपका नोटिस जो है क्वेश्चन नंबर 3 में आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा फिर से आप यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 में अनसीन पैसेज है, क्वेश्चन नंबर 2 में नोट मेकिंग है और क्वेश्चन नंबर 3 में नोटिस है। नोटिस के साथ साथ यहाँ पर नोटिस के साथ साथ पोस्टर आ जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब ये जो नोट मेकिंग है इट इज़ वेरी इजी। पहले समरी लिखने के लिए भी आता था लेकिन अब क्वेश्चन पेपर में समरी नहीं पूछ रहा है, केवल नोट मेकिंग पूछता है और उसका टॉपिक पूछता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा 4 मार्क्स का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने 10 मार्क्स का कर लिया, 4 मार्क्स का आप नोट मेकिंग कर लीजिए। नोट मेकिंग के लिए बहुत ही इजी है, पूरे पैसेज को आप पढ़ लीजिए और इनको 3 या 4 भागों में इनको बांट लीजिए। पहले भाग को मेन पॉइंट दे दीजिए आप 1। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, ये सही है, मैं आपको यहाँ पर नोट मेकिंग बनाकर बता रहा हूँ। देखिएगा पहला जो होता है वो हमारा मेन पॉइंट कहलाता है। ये मेन पॉइंट, तो एक हमने जिस भाग को पढ़ा है इसको 3 भागों में डिवाइड कर लिया आपने। पहले भाग में जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन किया गया है या जिसके बारे में बताया गया है उसको आप 1 पॉइंट देकर उस टॉपिक को लिख लेंगे। फिर 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 तक चले जाते हैं। तो ये मेन पॉइंट हो गया हमारा 1 और ये सब पॉइंट है 1.1, 1.2, 1.3, ये सब पॉइंट है। इसके बाद फिर दूसरे के नंबर में आ जाइए तो फिर नंबर 2 लिखिए। फिर यहाँ हमने कोई वर्ड्स लिखा और ये वर्ड हमारे ये 1 वर्ड या 2 वर्ड होना चाहिए, इससे ज़्यादा लंबा वर्ड हमारा, सेंटेंस नहीं लिखना है इसमें, नोट मेकिंग में सेंटेंस नहीं लिखना है। इसके बाद हमारा ये हो जाएगा 2.1, 2.2, 2.3, यहाँ तक चले गए। फिर 3 पॉइंट में आ गया, इसको ये हमारा मेन पॉइंट हो गया और 3.1, 3.2, 3.3। तो इसको हमने
इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारा नोट मेकिंग का हो गया। तो 3 क्वेश्चंस में आपको पूरे फुल मार्क्स मिलने वाले हैं गाइस। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, प्रिपेयर करें, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन पेपर इस तरह से आपके पास या तो मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा, उसको सॉल्व करके देख लें। आप ये ना सोचें कि मुझे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में ही जाके करना है। बिफोर गोइंग टू योर एग्जामिनेशन हॉल यू हैव टू प्रिपेयर इट वेरी वेल एंड यू शुड ट्राई टू मेक सम मॉक टेस्ट एट होम। हमें मॉक टेस्ट घर पर देना चाहिए, बिकॉज वो फीलिंग्स हमें लेकर आना है कि जिस प्रकार हमें एग्जामिनेशन हॉल में जाकर पूरे 3 घंटे हमें उसका यूज़ करना है विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट और एनी सेकेंड्स, यानी कोई भी समय बेकार किए हुए हमें क्वेश्चन पेपर करना है। तो जो हमारे अच्छे स्टूडेंट होते हैं या जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं वो तो एक क्वेश्चन पेपर को कई बार घर में कर देखते हैं, टाइम सेट करते हैं, टाइमर लगाते हैं और देखते हैं कि वो हमारा क्वेश्चन पेपर कितने समय में होने वाला है। तो देखिए, अगर आप वास्तव में एक गंभीर और बहुत ही संजीदा विद्यार्थी हैं तो एक क्वेश्चन पेपर को अपने घर में बार बार करके देखिए और इतना आपको कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि 3 घंटे आप बगैर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम यू विल बी एबल टू सॉल्व योर क्वेश्चन पेपर इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो ये क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 चीज़ें आने वाली हैं, एक आने वाला है लेटर और एक आने वाला है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के 2 भाग इसमें ये इस प्रकार हो सकते हैं, या तो आप एप्लीकेशन अपने किसी प्रिंसिपल को लिख रहे हों या फिर कलेक्टर को लिख रहे हों या एसपी को या एसडीएम को या पोस्टमास्टर को या किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को। तो गाइस इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत सारे इसके आपको टेस्ट, इसमें सैम्पल एप्लीकेशंस मिल जाएंगी, मैंने आपको सब्जेक्ट बता ही दिए हैं। और इसके बाद जो आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में ही वो आता है हमारा लेटर। तो ये लेटर भी हमसे बनना चाहिए, लेटर एंड एप्लीकेशन दोनों हमसे बनने चाहिए। लेटर में हम अपना एड्रेस पहले ऊपर लिख देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये, तो यहाँ हमारा एड्रेस हो जाएगा, फिर यहाँ डियर फादर, डियर फ्रेंड्स या जो भी लिखना है वो लिखना है। और आई हैव गॉट योर लेटर यस्टरडे, मुझे कल आपका पत्र मिला। आई एम वेरी वेल हेयर एंड होप यू आर ऑल्सो वेल देयर। आप भी वहाँ अच्छे होंगे। ये एक लिमिटेड है, कोई भी आप किताब उठाकर देखिए, कोई बुक उठाकर देख लीजिए जनरल इंग्लिश की, एक सैम्पल लेटर आपको मिल जाएगा। आपको प्रिपेयर उसको करना है और सारा काम यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में करना है। और जिस विषय पर हमें लेटर या एप्लीकेशन लिखना है उसकी चिंता हमें इसलिए नहीं करनी है, हमें तो केवल प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो जो टॉपिक है, उसका जो विषय है वो हमें क्वेश्चन पेपर में मिलने वाला है। स्टूडेंट्स याद रखें, मैंने आपसे कहा कि 50 मार्क्स जो हैं वो हमारे क्वेश्चन पेपर हमको प्रोवाइड करते हैं, बट वी शुड नो द रियल ड्राफ्टिंग ऑफ द आंसर हेयर। हमको तो आंसर की ड्राफ्टिंग बनना चाहिए कि आंसर हम कैसे करें, क्या आंसर होगा वो हमें सब क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करने वाला है, वो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 6 और 7 में। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये ग्रामर बेस्ड होता है और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है डिपेंड करता है डू एज डायरेक्टेड पर। अब ये पिछले वीडियोस भी आप मेरे देखेंगे तो आपको उसमें मिल जाने वाला है, काफ़ी टॉपिक मैंने ले रखे हैं फिल इन द ब्लैंक्स के और डू एज डायरेक्टेड के। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और वीडियो भी देखते रहें। और लगातार मैं इन वीडियोस में आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू सॉल्व योर क्वेश्चन पेपर। आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लें। देखिए आपकी प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन पेपर को किस प्रकार से कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको
फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड आने वाला है। तो इस तरह गाइज 11 12th के स्टूडेंट्स और 10th के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वहाँ ऑप्शन है, या तो आपको लेटर लिखना है या एप्लीकेशन लिखना है 10th के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन प्रिपरेशन पूरा होगा। और 10 मार्क्स के यहाँ पर अनसीन पैसेज आ रहे हैं, एक 11 12th में, लेकिन 10th में आपको 2 अनसीन पैसेज आएंगे 5 मार्क्स के, वो आपको करने हैं। तो ये दोनों मॉडल मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं। ये 10th का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मेरे पास है, तो मैंने उसको देखकर आपको बताया है कि ये किस प्रकार से है। ये मेरे पास रखे हुए हैं। 10th का क्वेश्चन पेपर जो है ये 75 मार्क्स का होने वाला है, और इसमें ये जो क्वेश्चंस आएंगे आपके, और ये पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 5 मार्क्स का होगा, अनसीन पैसेज। सेकंड क्वेश्चन भी जो होगा अनसीन पैसेज का होने वाला है, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो होगा वो नोट मेकिंग का होगा। नोट मेकिंग में नोट मेकिंग ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने अभी आपको बताया है। एक टॉपिक इसमें होता है, जब हम उस पैसेज को बार बार उसकी रीडिंग करते हैं तो एक सेंट्रल आइडिया हमारा निकल के सामने आ जाता है और वो हमारा आंसर हो जाता है। लास्ट में अब मैं आपको और बताने वाला हूँ कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम आप ज़रूर लर्न कर लें। 10th 11 12th के स्टूडेंट, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम ज़रूर आता है। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है सेंट्रल आइडिया का कि आप इस पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखिए, आप उसको हूबहू लिख देते हैं। और अगर आपने सारी पोयम्स जितनी आपके कोर्स में है और उन सारी सेंट्रल आइडिया आपने अगर लर्न कर लिया है तो उसी से संबंधित क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन आंसर के सेक्शन में आएंगे, जहां पर पोयम के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं और डेफिनेटली वो रिलेट करेंगे आपके सेंट्रल आइडिया से। तो सेंट्रल आइडिया की बाकी की जो पोयम है आपको वो वहां लिख देंगे, तो आपका याद किया हुआ कुछ भी बेकार नहीं जाने वाला है। स्टूडेंट्स लर्न कर लें, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम ज़रूर याद कर लें, ये आपके लिए आना ही आना है। और हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें क्वेश्चन आंसर, क्योंकि ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कोर्स है, बुक है। तो अभी तो जितने भी आपने लेसन पढ़ा है और जितनी स्टोरी आपको याद है उससे आप आंसर बनाने की कोशिश करिएगा, डेफिनेटली यू विल लर्न। और एक और मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, वो है एक्सट्रैक्ट। पोयम के भी एक एक्सट्रैक्ट आने वाले हैं, और जो आपके लेसन है प्रोज में उसका भी एक्सट्रैक्ट आने वाला है, ये भी 4 मार्क्स का आता है। तो गाइस इसके वो एक्सट्रैक्ट को भी प्रिपेयर कर लें। हर एक पोयम के पोएट का नाम और हर एक लेसन के राइटर का नाम आपको पता होना चाहिए, और उनके कैरेक्टर्स के बारे में पता हो कि उन कैरेक्टर्स ने उस आपके लेसन में क्या क्या किया है। अगर ये छोटी बातें आपको मालूम है तो डेफिनेटली आपका एमपी बोर्ड का इंग्लिश क्वेश्चन पेपर 9, 10th 11 12th का बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये मैंने ओवरऑल आपको क्वेश्चन पेपर में किस किस मार्क्स, किस किस नंबर पर कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं और उनको आप किस तरह से सॉल्व करिए। देखिए, आपकी आंसर कॉपी ही आपका चेहरा है, आपकी फिजिक है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका हार्ड वर्क है, जो आपकी आंसर कॉपी के थ्रू जाने वाला है। तो बहुत अच्छी राइटिंग में पेशेंसफुली आपको लिखना है, धैर्यपूर्वक आपको लिखना है, और पूरे टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। और आई होप दैट यू विल डू बेस्ट इन योर एग्जामिनेशन। टिल देन, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हियर। टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you very much.